Nikita Datta wants to kill Ranbir Kapoor. Headline. ये जो टीवी से और ये OTT एंड फिल्म्स का जो ट्रांजिशन था, ये किसी ने स्टीरियोटाइप कर दिया। Now you've become a B-grade TV actress. Now you are not going to do films. कोई ऐसा एम्बैरेसिंग फैन मोमेंट जो आज तक आपको याद रह गया हो? I had one random taxi driver who just stopped. And he stopped, he came out of his taxi and he said, "Ma'am, you're from Kabir Singh, can I have a photo?" But you should be okay with violence. I mean, you did a film like Kabir Singh, so you should be okay if the boy is hitting the girl. Have you seen the Babil Khan's video? Yeah. Don't know Babil personally. I have of course seen some of his work which I really like, but I really wish I knew more about it. But I hope whatever he's going through, he feels better because he didn't look like it was okay. I would love to play Nandini from Hum Dil De Chuke Sanam. I would love to play Geet from Jab We Met. Wow. I would love to play Piku from Piku. Rate your flirting skills on a scale from 1 to Shah Rukh Khan in DDLJ. Okay, that's the highest. I think my flirting skills would be 0.5. Huh? Very bad, like very bad. I think the half the times I think I blame myself for being single is because I had zero flirting game. Saif, one thing I have to say about him is extremely funny, extremely witty, very unpredictable and very fun to be around. Okay, Jaideep? Jaideep is a very calm person, lots to learn from and a talent. I don't think I've worked with a better talent. And Abhishek Bachchan? Again, very witty, very humorous, very humble, very humble, very interactive, makes an effort to speak to everybody. Hi guys, this is Nikita Datta. I've just had a lovely chat right here on Z Switch. Don't forget to watch it, so please like, share and subscribe. Hi guys, welcome to Switch. This is your host Sakshi Chauhan and today we have very talented, sexy, but cute Nikita Datta with us. Thank you. Welcome to Switch. Thank you so much. So, let me tell you this कि I know you from एक दूजे के वास्ते. Oh wow. Somu you are, right? Sumo, yes, that was my Sumo, name. no? Yes. Suman. So from Suman to this bold, beautiful, sexy, glamorous and jewel thief. Like, Yeah. एकदम से सारा change हो गया. How was that journey? If you have to describe this in one line. One line. This should be a 1-hour podcast. One line is too less, but I will try and do that. This journey from Suman to Farah in Jewel Thief has been adventurous. It's been with a lot of blood, sweat, and tears. It's been with a lot of self-belief, lot of motivation, lot of disheartening moments, lot of rejections, and lots of even successful moments. Yeah, it's a mix of all of that. Yeah, that's why I didn't ask you, tell me your struggle story because Yeah. I know that It's a mix. It's Yeah, a mix. it's a It's a mix. mix of everything. So if I have to ask your first audition, Yeah. and maybe that's for TV, right? No, my first audition was actually way before. I had actually auditioned for this ad for Pizza Hut back in 2012. And you know, because it was my life's first audition, मुझे ये भी नहीं मालूम था that how do you hold a slate. अगर आपको पता है that we all hold a slate जब हम audition Yeah, देने जाते हैं, profiles. जिसपे हम अपना नाम लिखते हैं, अपनी एज लिखते हैं, अपना फ़ोन नंबर लिखते हैं, आप अपनी अवेलेबिलिटी लिखते हो कि आप हो नहीं हो शूट डेट के लिए, और उसके बाद उसको साइड में रख के आप अपनी प्रोफाइल्स दिखाते हो. Here are my profiles. You look left, you look right and you look straight. Okay. So I did not even know that's how you have to do it. The person had to tell me कि नहीं अब आप इसको पकड़िए, अब आप इसको साइड में रखिए, ऐसे करिए. So that was the first time I kind of understood. That was my first audition. But at least उस audition के बाद मुझे ये समझ आ गया था, मुझे ad मुझे कभी नहीं मिली. But उस audition के बाद समझ आ गया था कि इतना आसान नहीं है कि आप बस audition दें और आपको बस ad मिल जाए या film मिल जाए. It's not going to be easy. Also slate पकड़ना. जी, उसके ऊपर तो हम pro right now. अभी लेकर आइए. I will suddenly hold it and go back into my zone. And what will be your सारी information क्या वो इन्फॉर्मेशन जो बेसिक आपसे पूछते हैं, आपका नाम, आपकी एज, आपका फ़ोन नंबर, आपने शूट डेट पे आप है कि नहीं, आपने अगर कोई कंपेटिटिव ब्रांड किया है, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं. Nice. And then your first TV serial. Yes. तो उसमें कैसे आपको किसने बताया, किस तरीके से जी, एक्चुअली जो मेरा पहला टीवी शो है उसका नाम था ड्रीम गर्ल, जो 2015 में आया था. एट दैट टाइम मैं एक्चुअली टीवी बिल्कुल नहीं करना चाहती थी. मेरे दिमाग में कहीं दूर तक नहीं था कि आई विल प्रोबेबली बिकम अ टीवी एक्टर नाउ.
आई हैड एक्चुअली डन समथिंग विद स्टार स्पोर्ट्स, क्योंकि मैं एक एंकर थी. मैंने एक स्टार स्पोर्ट्स के साथ वर्ल्ड कप का होस्टिंग की थी 2014 में, जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था. एंड उस दौरान मुझे याद है स्टार के किसी आई एम सॉरी, आई एम सेइंग स्टार, आई होप दैट्स ओके. उस टाइम पर ही किसी ने मेरे को सेम चैनल से देखा एंड दे केम टू मी एंड दे सेड दैट डू यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ टेलीविजन. आई थिंक ऑलरेडी मेरे दिमाग में आंसर था कि मैं नो बोलने वाली हूँ, बट स्टिल आई गिव इट अ चांस. आई वेंट एंड मेट एंड दे टोल्ड मी कि हम एक वीकेंड वाला शो बना रहे हैं जो सिर्फ सैटरडे संडे आएगा. एंड तब मुझे लगा था कि हाँ चलो, दिस इज नॉट अ बैड डील, क्योंकि आप सैटरडे संडे चलो आप एक टीवी शो कर रहे हैं साइड बाय साइड, एंड एट द सेम टाइम आई एम ऑल्सो गेटिंग टू होस्ट, बिकॉज ऑनेस्टली मैं होस्टिंग बहुत इंजॉय करती थी. बेसिकली आपकी जो जॉब है मुझे बहुत पसंद थी. सो आई सेड या दिस इज नॉट अ बैड डील. तो उन्होंने पहले तो मुझे बोला कि ये वीकेंड शो कर रहे हैं. उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, वो एक्चुअली वीकेंड में हम जस्टिस नहीं कर पाएंगे, तो शायद हम वीकडे ही जाएंगे. एंड आई सेड चलो ठीक है. मैंने उसके लिए अपना मन बना लिया. और उस टाइम जो शो मुझे बोला गया था कि हम करने वाले हैं, दैट वाज सपोज टू बी एन अडेप्टेशन ऑफ गॉन विद द विंड. अगर एक आपने, वो बहुत पुरानी एक क्लासिक है, 4 घंटे की पिक्चर है, वो बहुत बहुत पुरानी फिल्म है. वो बहुत ही अच्छी फिल्म है, अगर किसी ने देखी हो तो इट्स अ लवली फिल्म टू बी अ पार्ट ऑफ. सो आई हैड ऑलरेडी सीन इट. सो आई सडनली गॉट एक्साइटेड. आई हैड थॉट कि अरे गॉन विद द विंड का एक हिंदी में टीवी शो बन रहा है, आई एम बीइंग ऑफर्ड द रोल ऑफ स्कारलेट, मैं क्यों ना करूँ ये. सो आई हैड in like one go agreed without realizing कि यार टीवी शो की बात हो रही है. वो मतलब इंडियनाइज किया जाएगा, उसको इंडियन टीवी ऑडियंस की तरह बनाया जाएगा, वो वैसा नहीं है जैसे आपने बाहर देखा है. तो दे शॉट एक्चुअली अ वेरी, दे डिड लाइक अ मॉक एपिसोड, उन्होंने वो भी शूट किया था उसके लिए. एंड उसके बाद आई डोंट नो हाउ थिंग्स वेंट, अनफॉर्चुनेटली वो शो कभी ग्रीनलिट नहीं हुआ. लेकिन आई वाज ऑलरेडी ऑन कॉन्ट्रैक्ट विद द चैनल. तो वो चैनल ने मुझे एक चीज बोली थी कि हम आपको कोई ना कोई टीवी शो जरूर देंगे, आप लेकिन रुको. सो आई एक्चुअली वेटेड. एंड जब मैं वेट कर रही थी उस टाइम पर वो एक और शो के साथ आए मेरे पास, एंड दे सेड दैट व्हाई डोंट यू डू दिस शो. उस शो का नाम था मैं तेरा हीरो. एंड जब मैंने उस शो के बारे में सुना, मैंने उसके लिए भी एक टेस्ट शूट किया, मैंने खुद अपने सामने से जाकर बोला कि ये मेरे से नहीं हो पा रहा है, आई एम नॉट कनेक्टिंग विद द कैरेक्टर, विद दिस वर्ल्ड. आई सेड ये नहीं हो रहा है. सो आई एम ओके, अगर आप ये शो मुझे नहीं दें, एंड अगर आप मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया है वो उसको आप कैंसिल कर दें, मैं शायद ये नहीं कर पाऊँ. And then I think it was in destiny, with fate, or they were really keen. They came back to me and they said, wait, there is one more show. लेकिन ये हमारे सेम चैनल पे नहीं है, कि दूसरे चैनल पे है जो हमारे ये पूरे परिवार का हिस्सा है, उस पर है, आप ये देखिए. एंड वो शो था ड्रीम गर्ल, विच केम टू मी, उसी प्रोडक्शन हाउस का. एंड आई सेड ओके चलो, ये मेरे को लग रहा है कि शायद मैं ये कर पाऊँ, इसको एक चांस देकर देखते हैं. दैट्स हाउ आई केम इनटू टीवी. उसको मैंने एक चांस दिया. पहले महीने में मैं भागना चाहती थी, मैं सच्ची में गायब होना चाहती थी. जिस तरह की लाइफ वो टीवी आपको जिस तरह की लाइफ के आपको गुजरना पड़ता है when you get into television, क्योंकि working hours बहुत सारे होते हैं. You're working for 14 to 15 hours. You basically don't get a single day off. I remember 62-63 days मेरा एक streak रहा है जब मुझे एक भी दिन छुट्टी नहीं मिली. And television में unfortunately एक concept है कि अगर आप main lead है तो आपको रोना तो पड़ेगा, क्योंकि otherwise audience आपसे connect कैसे होगी, TRP कैसे होगी. So glycerine तो मैंने आज तक कभी यूज नहीं किया. मैं बड़ा ऐसे सोचती थी कि नहीं, मैं रियल आंसू निकालूंगी. लेकिन आफ्टर अ पॉइंट आई रियलाइज कि रोज मैं किसी ना किसी सीन में एट सम पॉइंट रो रही हूँ. तो जब मैं घर जा रही होती थी रात को, आई यूज्ड टू बी एग्जॉस्टेड. मतलब आंखें दर्द कर रही हैं, सर दर्द कर रहा है, इतने घंटों आप काम कर रहे हैं, आप पूरा रियल बॉडी. होते थे. आई थिंक मैंने आज तक लाइफ में 1 या 2 बार ग्लिसरीन यूज किया है. आई हैव ऑलवेज हैड स्टोर किया है एक टीवी बहू एंड देन इतने सारे आंसू. सो बेसिकली इट यूज्ड टू बी एग्जॉस्टिंग. एंड मुझे हमेशा लगता था कि मैं क्यों कर रही हूँ ये, व्हाट इज माय पर्पस ऑफ डूइंग दिस, बिकॉज आई जस्ट डिडंट अंडरस्टैंड कि मैं इस वर्ल्ड में घुस गई हूँ, बट ये कहाँ जा रहा है. बट आई थिंक वो एक महीना था जहाँ पर आई एम वेरी ग्लैड कि मैंने पेशेंस दिखाई, गिव अप नहीं किया. बिकॉज आफ्टर दैट वंस द शो सेटल, थिंग्स स्मूथ हो गई, थोड़ा आवर्स आसान हो गए, लोगों का प्यार मिलने लगा जो लोग वो शो देख रहे थे. तो वो सब जो चीज़ें होती है ना, वो बड़ी इंटॉक्सिकेटिंग होती है. आप एक बार, आपको ये सब चीज़ें अच्छी लगने लगे, आपको एक बार कैमरा के सामने आपको अलग, हर रोज़ अलग अलग सीन मिल रहे हैं,
आपको एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिल रहा है, कैमरा के साथ आपको खेलने का मौका मिल रहा है. तो आई थिंक दीज थिंग्स वंस आई स्टार्टेड एंजॉयिंग देयर वाज नो लुकिंग बैक. And when you begin the part of the household and the love you get, Yeah. उसके बाद तो I जी, don't and think उसके बाद my second show was something that actually gave me that recognition, which was एक दूजे के वास्ते, जो I think बहुत बहुत प्यार मिला मुझे उस शो के जरिए. And I think उसके बाद मुझे हमेशा मैं जब सोचती हूँ, I just go back and I think and I'm like, I'm very very grateful कि मैंने टेलीविजन को हाँ बोला. actually I knew कि it was your second show, but because that was my first. Yes, see, सबसे ज्यादा वही देखा गया है, वही शो. राइट, तो मैंने इसीलिए से कहा क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम आपको उधर देखा था एंड उसके बाद में मैं कंटिन्यू काफी टाइम तक उस शो की व्यूअर रही हूँ. दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड विद दिस. सो व्हाट इज द फर्स्ट थॉट दैट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू हियर द वर्ड टीवी बहू? टीवी बहू, मैंने खुद तो प्ले नहीं की टीवी बहू अपने तीनों शो में, लेकिन जो पहली एक इमेज आती है वो होती है एक लड़की जिसके सर पे पल्ला है, जिसने मंगलसूत्र पहना हुआ है, सिंदूर है, और एक बहुत ही सेल्फ सेल्फ ड्रिवन नारी है, लेकिन वो ऐसे ड्रेस्ड अप है. एक आई थिंक स्टीरियोटाइप्ड इमेज आती है मेरे दिमाग में टीवी बहू अगर आप कहें तो. अच्छा, अभी आपने जैसे बताया कि टीवी में काम करते हुए इतनी लंबी शिफ्ट होती है एंड देयर वाज नो वीक और डे ऑफ. या सो यू हैव डन टीवी and now you're doing OTT and films. So आपको उसमें चेंज क्या क्या लगता है? What's the major change except this shift वाला thing? शिफ्ट तो आई मीन कई बार होता है कि इवन फिल्म स्केड्यूल्स में आपको कभी कभी लंबी शिफ्ट करनी पड़ती है. मैंने एक फिल्म की थी पिछले साल जो रिलीज हुई थी, दंगे. उसमें तो हमने बहुत सारी 24 घंटे की शिफ्ट की है, बहुत कैजुअली, क्योंकि वो बाइलिंगुअल फिल्म थी, दो लैंग्वेजेस में शूट हो रही थी. तो कई बार ऐसे होता था कि हाँ 24 घंटे आज तो शूट चले गई. तो ऐसा नहीं है कि फिल्मों में ऐसा नहीं होता है, कई बार लोकेशन स्ट्रेस होता है, कोई हो जाता है तो यू हैव टू शूट. बट ये चीज़ है जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि हर चीज़ बहुत फुर्सत से होती है यहाँ पर फिल्मों में. यहाँ पर रश्ड नहीं होता है. तो एज एन एक्टर आपको जो प्रेपरेशन का टाइम मिलता है, आपको अपने कैरेक्टर पर, अपने सीन पर जो काम करने का वक्त मिलता है, वो टेलीविजन आपको नहीं दे पाता है, बिकॉज इट्स अ डेली शो. टीआरपी एवरी डे टेलीकास्ट हैज टू गो. बहुत स्ट्रेस होता है वहाँ पर चीज़ों का. Yes, वो साथ-साथ करेक्ट, बहुत हर चीज़ सिंक में जा रही होती है. एक रात पहले राइटर लाइनें लिख रहा होता है, उसके अगले दिन आती हैं, हम लोग शूट करते हैं, उसी दिन वो एडिट में जाती है और उसके अगले दिन टेलीकास्ट हो जाता है. तो स्कोप नहीं होता है आपके पास कि आप बोलो कि नहीं मुझे 1 घंटा चाहिए, इससे हम थोड़ा और एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसको वेरिएशन के साथ करें. वो सब स्कोप नहीं मिलता आपको टीवी में, जो आपको फिल्में देती है. एंड आई थिंक दैट्स व्हाई फिल्म्स आर मोर क्रिस्प, देयर कंटेंट इज मोर क्लीन, if I have to say. कबीर सिंह का सेट ज्यादा इंटेंस था या फिर द बिग बुल का? इंटेंस डिपेंड करता है. आई थिंक कबीर सिंह का सेट जितना इंटेंस फिल्म है उतनी इंटेंस सेट नहीं था. जरूरी नहीं है कि अगर आप कैमरा के सामने बहुत इंटेंस सीन्स कर रहे हैं तो सेट भी बहुत इंटेंस रहेगा. सेट कैन एक्चुअली बी वेरी काम अगर आप कैमरा के सामने अगर कोई भी ऐसा इंटेंस सीन कर रहे हैं. लेकिन ये है कि कबीर सिंह का जो सेट था वो मैंने उस पर ऑफकोर्स थोड़ा कम समय बिताया जितना मैंने बिग बुल के सेट पे बिताया. लेकिन कबीर सिंह का जो सेट था वो अनलाइक द फिल्म बहुत ही एक रिलैक्स सेट था. मतलब वहाँ पे कभी ऐसा नहीं होता था कि स्ट्रेस में कोई चिल्ला रहा है, ये हो रहा है, ऐसा दैट्स नेवर हैपेंड. सब बहुत कामली हंसी खुशी काम कर रहे होते थे. where even with Big Bull actually if I have to say even that is a film जहाँ पर बहुत aggression है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं. लेकिन even that was a set जहाँ पर हमने बहुत हंसी मजाक के साथ काम किया because अभिषेक बच्चन जाने जाते हैं अपने विट और ह्यूमर के लिए. तो वो तो सबको मेक श्योर करते थे कि हंसा के रखे अपने आसपास. So actually both the sets have not been intense or aggressive, but I've actually had fun a lot on both the sets. So when Kabir Singh came out, उसको बहुत ज़्यादा प्यार भी मिला थी, सक्सेस मिली. Also there were people जिनको कहानी या वो कैरेक्टर बिल्कुल पसंद नहीं आया. So आपके घर में या आपके दोस्तों ने भी देखा होगा जब वो फिल्म, तो क्या आपको भी ऐसा कुछ सुनने के लिए मिला कि यार देखो यही पिक्चर मिली थी, या फिर there were अलग कुछ ऐसा रिएक्शन उनका? रिएक्शन तो सबके मिक्स्ड आए हैं. ऑफ कोर्स प्यार तो बहुत ज़्यादा मिला. आई थिंक आफ्टर एक दूजे के वास्ते मुझे उसके बाद जाके प्यार बहुत ज़्यादा कबीर सिंह के थ्रू मिला, विच इज़ वेरी अप्रिशिएटेड. बट आई हैव नेवर हैड समबडी इन द फैमिली कम टू मी एंड से कि अरे ये कैसी फिल्म है या कुछ भी. आई थिंक दे ऑल अंडरस्टैंड कि ये फिल्म है, ये मतलब आप किसी को एक फिक्शनल वर्ल्ड में लेकर जा रहे हैं. एंड इट्स ऑलवेज नाइस जब आपके काम को अप्रिसिएशन मिलता है. So I am luckily very blessed with people near and dear me who are
always happy if I'm getting that appreciation. एक अजीब चीज़ जो ज़रूर हुई थी, किसी ने मेरे को I remember एक बार मैं किसी वायलेंस के ऊपर किसी को भाषण दे रही थी. This is not in front of the camera. मैं किसी को किसी चीज़ पर बोल रही थी and my friend just told me, she said, but you should be okay with violence. I mean, you did a film like Kabir Singh, so you should be okay if the boy is hitting the girl. And I just looked and I said, अगर मैं कल को अपनी किसी फिल्म में एक serial killer बन जाऊँ, एक thief बन जाऊँ, एक terrorist, I said, so I should be okay with all that. तो ये तो बहुत ही एक वाहियात लॉजिक. बट ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई थी उसके बाद, जो मेरे को ऐसे सोचने पर मजबूर किया था कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि जस्ट बिकॉज वी आर प्लेइंग अ कैरेक्टर वी बिकम ओके विद एवरीथिंग एल्स. इट्स नॉट लाइक दैट. सो ये जो टीवी से और ये OTT एंड फिल्म्स का जो ट्रांजिशन था, कुछ ऐसा वियर्ड सा कोई इंसिडेंट हुआ हो जब किसी ने आपको सोच लिया कि नहीं यार ये तो टीवी से है, या कोई समथिंग लाइक दैट, ये किसी ने स्टीरियोटाइप कर दिया हो? मेरे को एक्चुअली जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है, दे बीन सो अमेजिंग, फ्रॉम माय को एक्टर्स टू माय डायरेक्टर्स टू द क्रू, जहाँ पे कभी भी किसी ने भी किसी पॉइंट पे भी मेरे को ऐसा फील नहीं कराया दैट यू हैव कम फ्रॉम टेलीविजन. एक अजीब सी चीज हुई थी जब मैंने टेलीविजन को हाँ बोला था, क्योंकि उस समय मैं कुछ ऐसे लोगों के साथ आई यूज्ड टू बी वेरी वेरी फ्रेंड्स, आई यूज्ड टू हैव अ फ्रेंड्स ग्रुप जहाँ पर बहुत लोग थे जो न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी से पढ़ के आए हुए थे. वो सब फिल्मी बैकग्राउंड से भी थे. तो उस ग्रुप पे मुझे याद है किसी ने मुझे एक टॉन्ट मारा था जब मैंने अपना पहला टीवी शो साइन किया था कि अरे नाउ यू बिकम अ बी ग्रेड टीवी एक्ट्रेस, नाउ यू आर नॉट गोइंग टू डू फिल्म्स. एंड तब मुझे थोड़ा एक झटका लगा था, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत सेल्फ डाउट में थी कि क्या मैं सही डिसीजन ले रही हूँ, मुझे करना चाहिए. लेकिन अब जब मैं सोचती हूँ, ऑफ कोर्स आई एम नॉट फ्रेंड्स विद दोस पीपल एनी मोर, बट व्हेन आई थिंक अबाउट इट आई ऑलवेज थिंक कि आई एम सो ग्रेटफुल एंड हैप्पी कि मैंने वो डिसीजन लिया. क्योंकि जितना प्यार, जितना रिकग्निशन, जितना एक्सपीरियंस मुझे उन 3 सालों में मिला है, I don't think any one of them ever achieved that by just going to a school and coming back. So I'm very grateful I did that. If once उनके साथ वो सेम लोगों के साथ ऐसे इनकाउंटर हो जाए किसी जगह पे, तो अब आप बोलोगे ब्रो अब देखा. I don't think I need to do that because honestly, I mean, I don't think any of them are doing films anymore. But I guess like you let time speak and you let your work speak. I would not want to do that. हाय गंदी नहीं, हाय किसी को नहीं दिया मैंने. I'm just glad that universe has been kind to me. Right. Okay. So off screen निकिता दत्ता को क्या है? जिम फ्रीक है, नेटफ्लिक्स बिंजर है, या फिर चाय वाला फिलोसोफर है? Who is Nikita Datta? I think I'm a mix of all of these things. जिम फ्रीक, yes. इस प्रोफेशन को मैं अगर क्रेडिट दूं या किसी चीज़ को भी, मेरे को ऐसा बना दिया कि इवन अगर मैं छुट्टी पे कहीं जाती हूँ, आई डोंट मिस अ वर्कआउट. ये होगा कि मैं सब चीज़ें खा रही हूँ, डाइट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं अपना वर्कआउट किसी भी कॉस्ट पर मिस नहीं करती. वो एक कांस्टेंट रहता है. आई थिंक द मैक्सिमम आई कैन गो इज मे बी 2 or 3 days एंड उसके बाद माई बॉडी स्टार्ट्स फीलिंग कि नहीं हमें एक्सरसाइज करनी है, अदरवाइज यू नो यू कांट हैव अ गुड डे. लाइक आज सुबह अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, 2 दिन से आई हैड एक्चुअली गॉट लेस स्लीप, लेकिन आज सुबह आई हैड टोल्ड माई टीम, आई सेड अगर मैंने सुबह उठ के आज एक्सरसाइज नहीं की, आप मेरे को हर इंटरव्यू में क्रैंकी देखेंगे. थोड़ा सा मतलब थोड़ा ना वो एक होता है, इरिटेशन निकल रही है कि अरे वर्कआउट नहीं किया है. आई सेड सुबह मुझे आज करना बहुत जरूरी है इफ यू वांट मी टू बी हैप्पी थ्रू आउट द डे. दैट मींस आप करके आए. ऑफ कोर्स करके आई हूँ. आई हैड अ वेरी हैप्पी मॉर्निंग. सो आई हैव रियलाइज्ड दैट इट्स बिकम दैट, यू नो, जैसे लोगों को कॉफी चाहिए होती है सुबह सुबह, आई हैव रियलाइज्ड मुझे वो चाहिए सुबह सुबह एक्सरसाइज करने का एक जो हिट होता है, बिकॉज दैट रियली डिसाइड्स माई डे फॉर यू नो द एंटायर टाइम. So, कोई एक ऐसा, क्योंकि फैन मोमेंट बहुत सारे होते होंगे, कोई ऐसा एम्बैरेसिंग फैन मोमेंट जो आज तक आपको याद रह गया हो, और वियर्ड मे बी? फैन मोमेंट, बहुत वियर्ड फैन मोमेंट, आई डोंट नो हाउ टू से इट, बट आई हैव हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग फैन मोमेंट which was last year. मैं अपने पहले आज तक के सोलो ट्रिप पर थी. I had gone to Europe because बहुत टाइम से था मेरे दिमाग में कि मुझे किसी टाइम पर करना है, and I decided to actually go to very like non-touristy places. तो ऑस्ट्रिया एक कंट्री है यूरोप में, वहाँ पे एक छोटे छोटे शहर है, एक there's a small little town or city if I have to say called Hallstatt. There's Innsbruck, there is Salzburg. तो ये एक ऐसी जगह है जिनके काफ़ी लोगों ने नाम भी नहीं सुने होंगे, एंड बहुत लोग जाते भी नहीं हैं वहाँ पर.
and you'll not see many Indians, you know, generally आप कहीं जाएंगे तो आपको टूरिस्ट के रूप में, अभी जैसे समर आ रही है, हर जगह आपको मिल जाएंगे। हर जगह किसी देश के किसी दुनिया के किसी कोने में आपको ऐसा नहीं है कि इंडियंस नहीं मिलेंगे. Right, right. So So we true. are used to this. I'm also used to कि अगर आप US जाओ या कहीं और जाओ, आपको इंडियंस दिखते हैं and people come to you. I think the strangest thing was when I was in one of these cities, एंड मेरे को मतलब कहीं दूर दूर तक आई न्यू कि इंडियंस नहीं है यहाँ पर, इंडियन रेस्टोरेंट कहीं आपको नहीं मिलेगा, आपको पता है आप किसी ऐसी जगह पर हैं जो थोड़ी एलियन है. वहां पर आई हैड वन रैंडम टैक्सी ड्राइवर हु जस्ट स्टॉप्ड and he came out of his taxi and he said, ma'am, you're from Kabir Singh, can I have a photo? And I looked at him and I said, आप इंडियन है? And he said, हाँ. I said, आप यहाँ पर टैक्सी चलाते हैं? He said, yeah. I said, yeah, Indians है. He said, नहीं है थोड़े से. I said, यहाँ पर भी Indians है. He said, बहुत है. So I think बर्बाद. I said, not पैसा बर्बाद. I'm very happy to see them. No. I'm actually I feel at home the moment I see Indians, the moment I see a restaurant somewhere, I'm like, अच्छा nice, यहाँ पर है, घर की थोड़ी, you know, खुशबू आ रही है. But I think that was very strange for me. And then I think he went and told some of his people. So after that, when I went to a park जहाँ मैं walk करके जा रही थी, I had some more people who came in, and I was like, this is the last thing I expected, because I was in the zone कि I'm on a solo trip, कोई मुझे यहाँ पहचानता नहीं है, I can just go everywhere I want to without, you know, getting recognized. So I guess that was a very nice, sweet moment also, but also something I can never forget. Very nice. So sweet, yeah. So what's one thing that no one knows about you but should? One thing nobody knows about me. I don't know how to put it. I've already said a lot of things which I think I would come out of the closet, but okay, I'll give one positive and negative thing. What do I give first? Anything. Tell me. Negative first. Yes, then the negative first. Okay, negative is I'm a very big stress eater. Okay. Because of which, like, then, you know, I suddenly start having issues with food. So if at all there is a stressful moment, the only thing that I go to is, like, मुझे और कोई ऐसी आदतें नहीं है, I'm not into drinking, I'm not into smoking or anything like that. The only thing I go towards is dessert, and dessert or something that, you know, will calm me down. तो वो फिर कभी कभी मैं थोड़ा ज़्यादा खा लेती हूँ, एक्सेस में खा लेती हूँ, एंड उसके बाद अगले दिन आई स्पेंड जस्ट बीइंग वेरी गिल्टी अबाउट इट. This though I've been told by a lot of people close to me who know that I do this, saying ki you cannot do this, you have to stop doing this, that, you know, one day you're stressed and the next day you're getting over that guilt. So this is something I'm constantly telling myself that मुझे पता है कि ये मेरी एक खामी है and मुझे किसी point पर जाकर इसको change करना है life में, hopefully. The positive thing is, I think my willpower, कि I don't let anything pull me down where I feel like कि यार मतलब अब मेरे से नहीं होगा. I guess जब भी कोई भी problem आती है ना, even if I'm crying over it, even if I'm upset over it, even if I've spoiled 2-3 days, by the end of it I'll just be like, no, you can deal with it, you can, मतलब, you know, shit can hit the वो बोलते हैं ना, shit has hit the ceiling now, like that can also happen, but I'll just be like, नहीं यार तुम संभाल लोगे, तुम कर सकते हो ये. So I guess that is always there in me, that whatever goes wrong, we'll figure it out. Nice, very positive. So with that, how do you deal with trolls or unsolicited gyan on social media? The longest time I have actually not given them any attention. अभी हुआ है कि कभी-कभी जिस मस्ती में मुझे मन कर देता है रिप्लाई करने का, तो मैं ऐसे बीच में एक आध को रिप्लाई कर देती हूँ. But otherwise, I just don't indulge with anybody trolling, because I feel like क्योंकि बहुत possibility है वो अपनी किसी और चीज़ की भड़ास यहाँ मेरे account के इस picture के नीचे निकाल रहे हैं. So I really choose not to indulge into it. Okay, with that, I want to ask one question. If you don't want to answer, you can pass. So, have you seen the Babil Khan's video? Yeah. तो what do you think कि ये क्या है और mental health से कितना affect पड़ता है, मतलब I wish I knew वो क्या है, because I mean I don't know Babil personally. I have of course seen some of his work which I really like, but I really wish I knew more about it.
But I hope whatever he's going through, he feels better, because he didn't look like it was okay. जितना आप उस incident के बारे में जानते हो, video के बारे में जानते हो, that's exactly how much I also know. We've all seen it as audience. But because उसकी team ने कहा कि ये mental health से related है और ये सब. Yeah, mental health is it's a huge topic. Yeah. that you know, I think at some point all of us go through mental health issues. Yeah. And ये हो सकता है कि उसकी जो degree है, how severe it is, can be different. You might have a slightly lesser health issue, you know, some stress. Yeah, I might person to have slightly something more at some point, something less at some point. So वो सब चीजें बहुत subjective होती हैं. It depends from person to person, situation to situation. So definitely there could be something which is way more serious in his state. You know, I'm really glad that in today's time we speak about mental health. जो I feel like at some point हम बिल्कुल बात नहीं करते थे. तो अगर आप ज़माने की देखें तो काफ़ी सारी जो stories ऐसे आपको सुनने को मिलती हैं, I'm sure there might be some truth to it, some might just be made up, कुछ added चीज़ें होंगी. तो हमें हमेशा लगता है कि अरे उस ज़माने में of course mental health को किसने importance दी होगी. कोई बात नहीं करता था इसके बारे में. It's just that I'm glad today people talk about it. So you're not shy to reach out and say कि listen, I think I need help. Listen, I'm very anxious right now. मैं क्या करूँ इसके बारे में. तो अगर आज मैं यहाँ बैठकर अपनी एक खामी बता रही हूँ कि ये मेरी एक negative चीज़ है, I'm not shy about it. I'm like कि नहीं, ये मैं ऐसा करती हूँ. I know I need to work on this. This is something I'm not proud of. So I guess that is the change that we've seen today. So I really hope that people can, you know, take help and work on their health, their mental health, rather than, you know, being in a closet. And I really hope the same for Babil. Nice. Okay, so let's do a quick rapid fire round with Nikita Datta. Okay, first audition ever, disaster or dream? Disaster. I just told you about it. If not an actress, Nikita would be a? I would be this yoga teacher and also like a preacher. Yeah. Nice. Okay, one co-star you would love to get stuck in traffic with? I think Saif. Saif? Yes. I've realized most difficult situations bring out the best humor in Saif. I would love to be stuck in a traffic jam with him. Okay, Bollywood crush growing up. And please don't say Shah Rukh. Because no, it was not Shah Rukh. Shah Rukh is, after I worked with him, he became like somebody I admire. My Bollywood crush while growing up was always Hrithik Roshan. Oh my God. A role you wish you had done, like why wasn't I cast? I can't say why wasn't I cast for it, but I wish I would have gotten a chance to play multiple roles. I would love to play Nandini from Hum Dil De Chuke Sanam. I would love to play Geet from Jab We Met. Wow. I would love to play Piku from Piku. Oh, very nice, very nice choice. A movie that always makes you cry no matter what? Kabhi Khushi Kabhi Gum. Anytime. There are lots actually. Kabhi Khushi Kabhi Gum, because it's also my all-time favorite. You know, it's a very, I don't know if people cry or not in that. No, I'm talking about this 83. The couple that film. It always makes me cry. So there are a couple of them, but ये दो अभी नाम मेरे दिमाग में आ रहे हैं. Okay, rate your flirting skills on a scale from 1 to Shah Rukh Khan in DDLJ. Okay, that's the highest. I think my flirting skills would be 0.5. Huh? Very bad, like very bad. I think the half the times I think I blame myself for being single is because I have zero flirting game. Guys, please cooperate. Whoever flirts with me next time. Okay, if your life were a film, what would be the title? Thodi Seedhi, Thodi Tedi. Okay. Okay. Coffee with Karan or Kapil Sharma show? Pick one to spill tea. To spill tea? I think Coffee with Karan, because he'll get picked up. Kapil Sharma show में वो हंसी मजाक में निकल जाएगा. Nice. अगर if you want tea, gossip आपको करनी है तो फिर Coffee with Karan. Okay. Kill, marry, friend zone. Vicky Kaushal, Ranbir Kapoor, Siddhant Chaturvedi. Because you said Coffee with Karan, that's why this question. Okay, that's why. Sorry, what is it? Kill, marry and? Friend zone. Friend zone. Vicky Kaushal, Ranbir Kapoor, Siddhant Chaturvedi. I think I'll friend zone. It's such a weird combination. You give me more names. No, you can't. No. Take it. Not married. You want? Okay, wait. Let's make it easier. I think I'll marry Ishan Khattar. He looks like you know, a boy you can marry out of everybody. I would want to
इसको आप तो हेडलाइन बना के डालोगे, मुझे पता है, इसलिए आई एम बीइंग सो केयरफुल इन सेइंग दिस ना. निकिता दत्ता wants to kill Ranbir Kapoor. Headline. Yes, I've got it. Yeah. Yes, Okay. I got it. So yeah, I'll kill Ranbir Kapoor. I don't think I'll want to do. Friend zone Vicky Kaushal for sure. He's a lovely person. I would love to be friends with him. Nice. So you've worked with Abhishek Bachchan, Saif, Yeah. and Jaideep Ahlawat, so many actors. One thing, if you want to say about your lead actors, your co-actors. Which all? You have to give me names. I'll say Okay, about them. Saif. Saif, one thing I have to say about him is extremely funny, extremely witty, very unpredictable, and very fun to be around. Okay, Jaideep. Jaideep is a very calm person, lots to learn from, and a talent. I don't think I've worked with a better talent. And Abhishek Bachchan. Again, very witty, very humorous, very humble, very humble, very interactive, makes an effort to speak to everybody. And among these three, सबसे ज़्यादा naughty या mischief कौन है जो set पर? That's Saif. Everybody knows it's Saif. Second, AB. AB is also no less. He's also pretty much there. Jaideep is still, he's a better behaved person. Okay, one last. Yes, So one actor you want to work with, like you really want to work with. that's Shah Rukh Khan. Shah Rukh I Khan? didn't say he's my crush, but I really want to work with Shah Rukh Khan. Why I asked this question because ये किसी ने lucky मुझे- couch है. या किसी ने मुझे कहा है और लास्ट टाइम जो गेस्ट थी वो उन्होंने एक स्टोरी डाला था कि यहाँ पर मैंने कुछ कहा और वो हो गया. How lovely. तो एक काम करते हैं, कैमरा एक बार आप ऑफ कर दोगे, मैं कई चीजें बोल के जाती हूँ उस काउच के ऊपर. I'll just actually have a list. I'm saying all of those things. Whoever I want to work with, from directors to actors, सबके नाम बोल के then I'll go अच्छा, from one there. actor or director on Actor camera. has to be Shah Rukh Khan. I really want to work with Shah Rukh Khan. One director, I think that's a longer list. Yeah. Okay, one. I'll कोई say- बुरा नहीं मानेगा, प्लीज बुरा मत मानना. Okay, for now I'll say Sanjay Leela Bhansali. I really want to be in his world. सुन लिया है सितारों आपने. मैं भी चाहती हूँ निकिता एक दिन स्टोरी लगाए और जब ये हो जाए. I will give you credit, your yellow couch, your purple jacket, सबको credit मैं दूंगी. Great. And I had a great time talking Thank to you. you, Nikita. You're really sweet. Thank and thank you so much. Here's your camera. थोड़ी सी तारीफें about us too. Hi guys, this is Nikita Datta. I've just had a lovely chat right here on Z Switch. Don't forget to watch it. So please like, share and subscribe.